ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे। 3 डीप ब्रेथ्स। बॉडी को रिलैक्स करें। Bringing the attention to the center of the forehead. Energy center है। विजुअलाइज करें tiny point of light, energy in the center of the forehead, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। It's the energy center of this body. It's where I reside. I the being. मैं शक्ति। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। हर थॉट क्रिएट करने वाली शक्ति। I the being, the master of this body. Now very gently create a thought. I am a peaceful being. Say it in your mind. Create the thought. Create the energy. I am a peaceful being. And as I create this thought, the energy vibrates and radiates to every cell of my body. Now create it again and feel this happening. I create a thought and the energy flows to every part of my body, reaches every cell of my body. I am a peaceful being. I am calm and stable always. I am a loveful being. Feel this energy. It's love radiating to every cell of the body. I am a loveful being. Love vibrates to every part of my body.
healthy being. Every cell of my body vibrates with happiness. I, the being, I am the creator of my body. I am the creator of this body. I think, I feel, I vibrate, I radiate, and I create my body. I heal my body. God's power and blessings flow to me and from me to every cell of my body. I vibrate at the frequency of purity. I vibrate at the frequency of compassion. And I radiate this to everyone around me. I heal people with the power of my mind. Visualize this. Your thoughts are vibrating. They reach another person at their center of the forehead. They receive your vibrations. It becomes their energy, and that energy flows through their body. Just by being who I am, I energize others. Just by being who I am, I can heal them. And every thought I create vibrates into the environment, and I create the atmosphere. I create the atmosphere of my house. I create the atmosphere of my hospital. I think, I create,
and it radiates. I am a powerful being, master of my mind, creator of my body, creator of my relationships, and creator of the environment. It's I. Om Shanti. In just 2 minutes, सिर्फ 2 मिनट में, जब हम कॉन्शियसली रुक कर 2 मिनट के लिए हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब हम कॉन्शियसली हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करते हैं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग। ये एनर्जी सेंटर है यहाँ पर। तो यहाँ से वो वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंग अंग तक जाती है। आपको लगता है ऐसा होता होगा? As a doctor, do you believe that this happens? Anybody who doesn't believe that this happens? क्या आपको फील होता है कि जो आप सोचते हैं उसका असर आपके शरीर पर होता है? यस यस, अच्छे से बताओ। यश पक्का पक्का है कि जो हम सोचते हैं और फील करते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होता है? कितना होता है? थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? पूरा पूरा। मतलब मेरी हर थॉट मेरे शरीर को मिलती है। क्या मेरी हर थॉट मेरे शरीर को मिलती है? क्या हम लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं? हम कहते हैं ना, इनसे मिले बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिली, इनसे मिले मुझे वाइब्रेशंस थोड़ी सी। तो जब हमें लोगों की वाइब्रेशंस मिल सकती हैं, लोगों को हमारी वाइब्रेशंस मिल सकती हैं, तो हमारे सबसे नज़दीक कौन रहता है? वाइब्रेशंस कौन क्रिएट कर रहा है? यो द एनर्जी सेंटर। इस एनर्जी सेंटर के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन रहता है? दिस बॉडी। तो यहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो लोगों के पास तो बाद में पहुँचेगी, लेकिन यहाँ से हर वाइब्रेशन पहले कहाँ पहुँच रही है? अब अगर हम सिर्फ 1 घंटे के लिए, चलो 1 घंटा भी ज़्यादा, 10 मिनट के लिए, कल आप करेंगे लेकिन आज नहीं, कल आप सिर्फ 10-10 मिनट्स के इंटरवल्स में अपने माइंड को सिर्फ याद दिला देना कि एवरी थॉट आई एम क्रिएटिंग इट्स रीचिंग माई बॉडी। तो आपको नहीं लगता हम थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे? लगता है या नहीं लगता? ध्यान से सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? अगर आई क्रिएट अ थॉट आई एम अ पीसफुल बीइंग and it's radiating to my body, so when I create the opposite thoughts, does it reach my body or no? अगर over a period of 2 years, 5 years किसी व्यक्ति के जीवन में कोई challenges चल रहे हैं, crisis आ रहा है, कोई बातें आ रही हैं, and that person does not know how to think right in every situation, एंड वो हर बात में परेशान, नाराज, उदास, चिंता, गुस्सा, और उसको लगा भी नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है कि बातें ठीक नहीं चल रही मेरे जीवन में तो परेशानी तो होगी ही, गुस्सा तो होगा ही, नाराज़गी तो आएगी ही। तो नाउ जस्ट टू विजुअलाइज दैट पर्सन
उसका मॉडल आप अपने सामने अभी लेकर आइए कि दिस इज द एनर्जी सेंटर, दिस इज दैट बॉडी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, 3 years, 5 years, that person has been living almost creating stress, aggression, fear as a normal thought. कभी कभी वाली थॉट नहीं, एज अ नॉर्मल थॉट. तो आपको क्या लगता है ये शरीर कब तक ले सकता है उस तरह की एनर्जी? कब तक ले सकता है? हर रोज वो गुस्सा कर रहा है, चिल्लाकर बात करना उसका नॉर्मल हो गया है, थोड़ा सा भी उसके अनुसार नहीं होता तो वो इरिटेट होने लग जाता है, थोड़ा सा भी खाली बैठता है तो वो पुरानी बातें याद करके परेशान हो जाता है. एंड ही थॉट और शी थॉट दैट दिस वाज नॉर्मल. एंड वो कई सालों से ऐसा कर रहा है और कई सालों से उसका ये शरीर वो वाइब्रेशंस को रिसीव करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है. साथ साथ अलग ये बात है कि खाना भी बहुत हेल्दी नहीं है, लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नहीं है. कभी किसी टाइम खा रहे हैं तो कभी किसी टाइम खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं तो कभी कुछ खा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, कभी आधी रात को सो रहे हैं, कभी सो ही नहीं रहे हैं. तो आपको क्या लगता है उसका शरीर कितने साल तक निरोगी रह सकता है, हेल्दी, डिजीज फ्री? How many years does this human body have the capacity to face all this and yet remain? बताइए. How much? Because we don't know the answer. So you know the answer of the body. We don't know the answer of the body. How much time can this body? जैसे हम कहते हैं ना, कब तक मैं ये झेलूंगा, कब तक मैं ये सहन करूंगा, कब तक? तो वो हम कहते हैं, हम, ये बॉडी कब तक कर पाती है? और जब हमें ये सारी बात पता है कि ये बॉडी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ये सहन नहीं कर सकती, वो कुछ ना कुछ तरीके से हमें इंडिकेशन देना शुरू करती है. शुरू में इंडिकेशन कुछ दर्द, कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ स्टिफनेस, फिर शुरू से नहीं भी ठीक किया तो और कुछ दर्द दर्द, और फिर भी ठीक नहीं किया तो कुछ और, कुछ ब्लॉकेज, फिर और भी ठीक नहीं किया तो कुछ क्लॉट ट्यूमर. ये धीरे धीरे का ब्लॉकेज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है. शुरू में थोड़ा थोड़ा दर्द, फिर थोड़ा ज़्यादा दर्द, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लॉक, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्लॉट, फिर थोड़ा बड़ा ट्यूमर, वो यहाँ से बन रहा है. अब जब हम उनको ये बात बताते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, इतना दुनिया में चैलेंज है, स्ट्रेस तो होगा ही. लेकिन अगर आप ये बात सबको बताएंगे, अगर आप मानते हैं इस बात को कि यहाँ से हर थॉट यहाँ जा रही है, यहाँ से हर थॉट यहाँ जा रही है, तो जब आप दुनिया को कहते हैं कि मोस्ट डिजीजेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, लेकिन जब वो लोग वो लाइफस्टाइल शब्द सुनते हैं तो उनको लगता है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप हो गया लाइफस्टाइल. तो वो फटाफट अपनी डाइट भी ठीक कर लेते हैं, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज की रेजीम भी डाल देते हैं, और उनको लगता है हमारा काम हो गया. और फिर कुछ साल के बाद वो आपके पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज जाता हूँ, मुझे कैसे हुआ ये? फिर उसके बाद होने के बाद फिर हम उनको कहते हैं स्ट्रेस. पहले बता देते तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? सो व्हेन वी टॉक टू द वर्ल्ड अबाउट लाइफस्टाइल, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम ऑन द लाइफस्टाइल इज द वे वी थिंक. क्योंकि जो सही सोचता नहीं वो सही खाने तक तो पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसने उतना राइट थिंकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं किया है. तो उसके अंदर विल पावर भी नहीं होती है. सोचता है आज से नहीं खाना, फिर कहता है नहीं कभी कभी तो चलता है, या क्या करूं, इसके बिना रहता नहीं है. आपके पास तो हॉस्पिटल में भी ऐसे लोग आते होंगे ना जो छुपा के करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर. आपने उनको बोला भी, अभी भी अगर आपने नहीं छोड़ा तो कहते छोड़ो ना डॉक्टर साहब, कौन इतनी बोरिंग लाइफ जिएगा, खा पिए के जाएंगे. That is when we reach where willpower is over.
where I am not the master of this sense organs, these sense organs have started controlling me. मैं गुलाम हो जाता हूँ अपनी कर्म इंद्रियों का. लेकिन वो स्टेज बहुत बाद में आती है. कमज़ोर संकल्प कर करके ये जो बीइंग है, जिसको हम हिंदी में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, इसकी शक्ति क्या होने लगती है? कम कम कम. फिर पता भी है कि मुझे ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. आप हर डब्बे पे लिखवा दिया आपने कि टबैको. इमेजिन वो गंदी सी फोटो देखकर भी खरीदते हैं. देखते देखते भी याद आ जाए किसी को तो ना खरीदे. इतना हमने करा उनके लिए. लेकिन विल पावर इज, देखते हैं, उसमें से निकालते हैं और उस फोटो को डस्टबिन में फेंक देते हैं. Which means which stage do we reach? But this stage comes much later. लेकिन as a scientific community, अगर हम इस बारे में बात करना शुरू करते हैं तो ये बात स्कूल्स तक जाएगी. और अगर ये स्कूल्स तक जाएगी तो स्कूल से बच्चों को सिखाया जाएगा कि राइट लाइफस्टाइल, राइट एनर्जी फॉर हीलिंग द बॉडी होती क्या है. ये हर बायोलॉजी की किताब में जानी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेडिकल स्कूल के सिलेबस में जानी चाहिए. जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए. नहीं तो हमारी हीलिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है. आज डॉक्टर सतीश जी ने एक बहुत पावरफुल लाइन कही थी एंड में. आई डोंट नो अगर आपने रजिस्टर की है कि नहीं. उन्होंने कहा, भारत की संस्कृति में ये सारी बातें हैं, दुनिया को तो सीखना है, हमें तो जो पता है उसको सिर्फ फिर से हमने सुना. लेकिन हम इस समय ये जीवन जी रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति में है उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं. यहाँ से कोई लेके जाता है, फिर उसको अंग्रेजी में बोलता है और हमारी फ्री की चीज़ को फिर हम कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. हमारी संस्कृति में हजारों सालों से संकल्प से सिद्धि होती है. हमारी संस्कृति में है कि संकल्प से सृष्टि बनती है. विच मीन्स माई थॉट्स क्रिएट माई वर्ल्ड. एंड माई वर्ल्ड में सबसे पहली चीज आती है माई बॉडी, देन माई रिलेशनशिप्स, देन माई एनवायरमेंट, देन माई वर्क. तो संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि, ये हमारी संस्कृति में है. हम कहते हैं क्या बोल रहे हैं संकल्प से सिद्धि, इसका क्या मीनिंग है? समझ में नहीं आता है. वो लेके जाते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कहते बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब हम खुद की चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे, फिर हम उनको यूज़ कैसे करेंगे? और जब तक हम उनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा? और जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, हम उसको दुनिया के साथ शेयर कैसे करेंगे? When it comes to the science of the body, हो सकता है विदेश में साइंस के ऊपर ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा ये सब हुआ तो हमने उनसे सीखा, तो अच्छी बात है ना. जहाँ की जो विशेषता होती है हमें उसको वहाँ से लेना चाहिए. तो विज्ञान की विशेषता हमने वहाँ से ली, लेकिन ज्ञान की विशेषता हमें यहाँ से वहाँ भेजनी होगी. ये हमें करना है. नहीं करना है, लेकिन करेंगे तब जब खुद उस ज्ञान को यूज करेंगे, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर हम दुनिया को दिखाएंगे. आज कोई भी चीज में हम वहां से रेफरेंस ले रहे हैं. मेडिकल साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस चीज में मिरेकल्स कितने हुए हैं. मतलब एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक प्रेडिक्शन. साइंस ने बोला कि नहीं ये, लेकिन कुछ और हुआ एंड वी सेड दिस इज अ मिरेकल. तो जब इनफ एविडेंस है कि ये चीज़ में बॉडी इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी, 6 महीने में ये होगा, ये होगा, ये होगा, और किसी का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, देन इट्स कॉल्ड अ मिरेकल. लेकिन वो मिरेकल क्रिएट कैसे होता है? हाउ डज दैट मिरेकल गेट क्रिएटेड? एंड किसी केस में ऑपोजिट होता है कि साइंस ने कहा बस कुछ नहीं, 2-3 महीने आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो ऑपोजिट मिरेकल क्रिएट कर देते हैं.
मतलब जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, कहते ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको क्या हो गया? So miracle means anything that is gone different completely from what was logical and what was predicted based on our science study. तो उसमें किस चीज का रोल प्ले हुआ? किस चीज का रोल प्ले हुआ? किस चीज का रोल प्ले हुआ? जहां प्रिडिक्शन फेल हुई, दिस वे और दैट वे। हमने सोचा था बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट हो गया। हमने सोचा था विल नॉट बी एबल टू मेक इट, ऑपोजिट हो गया। सो इसमें कौन सा फैक्टर प्ले हुआ? पावर ऑफ द पावर ऑफ द माइंड। साइंस क्या करता है? सिर्फ जो दिखता है उस पर फोकस करता है, लेकिन सिर्फ जो दिखता है वो ही नहीं वर्क कर रहा है, जो नहीं दिखता है वो भी काम कर रहा है। और भारत में हमारे पास ये शक्ति है कि जो दिख रहा है उसकी शक्ति और जो नहीं दिखता है उसकी शक्ति, दोनों की शक्ति को जब यूज करेंगे तो हम अपने देश में जो मिरेकल्स की परसेंटेज है ना, वो तो कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास साइंस है, लेकिन साइंस के साथ हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास मेडिटेशन है, हमारे पास योगा है, हमारे पास सेवा भाव है, हमारे पास कम्युनिटी लिविंग है। जब ये इतने सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं और ये सारे फैक्टर्स हीलिंग में यूज हों, तो आपको लगता नहीं हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन हम उस मिरेकल को क्रिएट करने की बजाय हम सिर्फ देखते हैं अच्छा कितना परसेंटेज रेट, कितना वो जो उधर रिसर्च हुआ, हम उसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में फिट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो थॉट्स क्रिएट होती है और वो ही रिजल्ट और बढ़ता जाता है। किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट है और आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब पेशेंट को वो पता चल जाता है या वो जाके सारे साइड इफेक्ट इकट्ठे ही पढ़ के आ जाता है। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू थॉट्स, कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। इसीलिए जब से लोगों ने अपना इलाज खुद करना शुरू किया, क्योंकि उनको लिखा, सब कुछ तो लिखा हुआ है, तो वो आपके पहुंचने से पहले आधा अपना सारा डायग्नोस करके आते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, वी एंटर, वाई इज माई फुट पेनिंग, वाई इज माई दिस पेनिंग, तो वो तो सारी चीजें दिखा देता है, फ्रॉम अ स्प्रेन टू अ प्रॉब्लम इन माई ब्रेन, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर वाई में। एंड वो पढ़ के, तो जैसे इंफॉर्मेशन आई, information will create thoughts, and when information will create thoughts, thoughts will radiate to the body, body will respond. कई डॉक्टर्स कहते हैं हमारा ये पेशेंट कितने सालों से ये दवाई खा रहा था, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब बाई चांस उसको किसी ने साइड इफेक्ट बता दिया, अच्छा वो दवाई खाते हो, उस दवाई के तो ये साइड इफेक्ट है, अच्छा ऑनलाइन गया, साइड इफेक्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक पढ़ लिया, 4 दिन बाद डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं उस दवाई के। डॉक्टर साहब कहते 5 साल से खा रहे थे, क्यों नहीं साइड इफेक्ट हुआ आपको अभी तक? अगर होना था तो पहले से होना चाहिए था। क्योंकि 5 साल तक उसके मन को वो साइड इफेक्ट नहीं पता था। पावर ऑफ द माइंड। और हमें ये सब कुछ पता है, कुछ भी नया नहीं, लेकिन वी नॉट यूजिंग इट, वी हैव टू यूज इट। कि इंफॉर्मेशन, पहले जब कैंसर और ऐसी बीमारियां होती थी जहां इलाज उतने नहीं होते थे जितने आज हैं, तो बताया ही नहीं जाता था व्यक्ति को कि आपको कैंसर है। याद है, हम वो सब उस ईरा में हैं, पूरा परिवार मिलता था, डॉक्टर के साथ बात करते थे कि बताओ ही मत उनको कि उनको कैंसर है। वो व्यक्ति खुश चलता था जीवन में, उसको पता ही नहीं था कि उसके शरीर के अंदर इतनी बड़ी बीमारी चल रही है। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इवेंचुअली जो होना था वो हो जाता है। आज जैसे शब्द पता चलता है, इमोशंस अलग अलग क्रिएट होने शुरू हो जाती है। सो नाउ टू यूज द पावर ऑफ द माइंड इन द राइट वे, कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन की वोकैबुलरी, और फिर उस इंफॉर्मेशन सुनने के बाद उनको सोचना कैसे, वो भी हमें बताना पड़ेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन दी तो आधा काम किया। इंफॉर्मेशन तो फिर उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर देगी। तो इंफॉर्मेशन देने के बाद हम उनको एक लाइफस्टाइल बताते हैं, आपको ये दवाई लेनी है, आपको ये टेस्ट करना है, आपको ये करना है। 1 मोर पैराग्राफ, आपको ऐसे ऐसे सोचना है।
Does thinking come as a part of our profession? Can thinking come as a part of our profession? क्या हुआ? अभी तो आपने कहा था सारा कुछ यहाँ से यहाँ जा रहा है और बन रहा है इसके अंदर, तो does that come as a part of our profession or it doesn't come as a part of our profession? If I do not share that with the patient, I'm actually being unfair. मैं उनको छोटी सी बात नहीं बता रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर वो आपको आके कहेंगे मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, सब कुछ डॉक्टर साहब आपने सब कुछ जो बोला मैंने किया, ये क्यों नहीं अभी तक ठीक हो रहा? तो फिर वो ब्लेम की उंगली किस पे रखेंगे? फिर उनको कोई बोलता है लेट्स टेक सेकेंड ओपिनियन, इन डॉक्टर से हम ठीक नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगा मुझे ठीक करने वाला कौन है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। इसलिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कभी भी उनको ये फील नहीं होने देना चाहिए कि हम आपको पूरी तरह से ठीक करते हैं। हम उनको बताते हैं कि हम आपके इलाज का एक हिस्सा हैं, हमारी दवाइयाँ आपके इलाज का एक हिस्सा हैं, और आपके इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपका अपना मन, और आपके इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके साथ रहने वाले परिवार का मन, और आपके घर का वातावरण और वाइब्रेशन। अगर उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ हैवी एनर्जी तो आपको ठीक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप उसको चेंज कर लें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इज दैट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन टू से? क्या आप रेडी हैं बोलने के लिए कि 100% मैं नहीं आपको ठीक करता, 50 मैं 50 आप? बोलते नहीं ना, आप उनको बताते नहीं हो ये बात। आप उनको बोलते हो आप आ जाओ हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। फिर जब वो नहीं ठीक होते तो वो किसके पास आएंगे? वी विल हैव टू टेल देम कि वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, लेकिन वन पार्ट इज ऑल्सो इन योर हैंड्स, हाउ यू थिंक। पहली बात वो हमारे पास आए ही इसलिए हैं बीमारी मैनिफेस्ट करके, क्योंकि पहले से यहाँ से बहुत अच्छी इमोशंस वहाँ नहीं जा रही थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब बीमारी पता लगने के बाद तो फिर बीमारी का खर्चा पता लगने के बाद तो, और सब इतना करने के बाद हम उनको प्यार से बोलते हैं लेकिन आप टेंशन मत लेना। वो कहते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब। हाउ विल इट वर्क? सो वी विल हैव टू गिव देम द राइट वेज ऑफ थिंकिंग। लेकिन ये सब कुछ हम उनके साथ तब शेयर कर सकते हैं जब उसका एक्सपीरियंस हमने अपनी खुद की लाइफ में किया होगा। जब तक हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और हम बोलेंगे भी तो उसका किसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे कि टेंशन मत लो, तो वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब कैसे, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, स्ट्रेस कैसे ना हो। तो डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ आई अंडरस्टैंड, स्ट्रेस तो नॉर्मल है लेकिन आप मत स्ट्रेस लेना। हाउ विल इट हैपन? मेरे को तो स्ट्रेस होता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आप नहीं स्ट्रेस लेना। देन इट डजंट वर्क। लेकिन जो डॉक्टर अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, अपने माइंड और थिंकिंग पर वर्क करके एक जर्नी पर चलता है, जहाँ वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है कि स्ट्रेस तो मेरी क्रिएशन है, ये मेरी थॉट्स का हिस्सा है, एंड आई कैन चेंज इट, आई कैन स्टार्ट थिंकिंग राइट। फिर वो अपने पेशेंट को कन्विक्शन से बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारा दिन लाइफ एंड डेथ के साथ काम कर रहा हूँ, एंड मैं काम एंड स्टेबल रह सकता हूँ, तो आप अपने कंप्यूटर के साथ काम करते हुए नहीं रह सकते हो? तो कहेगा हाँ हाँ आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। इट हैज़ टू गो विद कन्विक्शन, इट हैज़ टू गो विद माई वाइब्रेशन, इट हैज़ टू गो विद माई एक्सपीरियंस। इट कैन नॉट गो एज थ्योरी। थ्योरी में नहीं जा सकता। इसलिए दूसरों की हीलिंग करने के लिए सबसे पहले किसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है? क्या हमें भी कभी कभी स्ट्रेस होता है? नहीं होता? होता है तो आपने बताया क्यों नहीं? आपसे पूछा क्या हमें कभी कभी स्ट्रेस होता है? देखो अभी भी नहीं हाँ जी बोलते। होता है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको लगता है क्या अजीब सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है पूछने का। दिस इज हाउ नॉर्मल वी आर मेकिंग इट। भारत क्या क्या सिखा सकता है दुनिया को, आज इसकी लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लग गई है कि उन्होंने तो सीखना है, हमने तो जो पता है सिर्फ उसको रिवाइज करना है। दुनिया ने डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल क्रिएट किया है।
जैसे आप एक डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल बताते हैं, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, फिर वो पूरा जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं हर चीज़ का ही नॉर्मल का एक कॉलम आता है उसके अंदर। साइंटिफिक कम्युनिटी वो नॉर्मल की डेफिनेशन क्रिएट करती है। इसी तरह साइंटिफिक कम्युनिटी ने नॉर्मल इमोशंस की डेफिनेशन भी क्रिएट कर दी है, लेकिन इट्स टाइम कम टू चेक वेदर दैट डेफिनेशन इज राइट। दोनों हाथ आगे करें। हमारा लेफ्ट हैंड पे हम रॉन्ग वाली इमोशन को रखेंगे और हम अपने राइट हैंड पे हमारी राइट वाले इमोशंस को रखेंगे। आई विल कीप सेइंग द इमोशन, आप रखते जाना, और रखोगे जब तो उसको ऊपर कर देना उस हाथ को, तो हमें पता चलेगा आपने कौन सी साइड यूज़ की है। और दूसरों के हाथ को नहीं देखना, इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट, आपको टाइम नहीं मिलेगा दूसरे के हाथ को देखने का। और अगर दूसरे के हाथ को देखा तो पक्का आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए तो बिल्कुल ही दूसरे के हाथ को नहीं देखना, ठीक है। तो रॉन्ग वाली लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट वाली मतलब हेल्दी फीलिंग, एंड रॉन्ग मतलब जो अनहेल्दी है हमारे लिए, ठीक है। स्ट्रेस, फटाफट करना। स्ट्रेस, calm and stability, anger, compassion, fear, faith, criticism, appreciation, comparison, self-respect, jealousy, blessings, competition, cooperation, worry, care, complaining, gratitude। बस ये डेफिनेशन हमें पूरी दुनिया को बतानी है। किसी ने एक भी गलती नहीं की, किसी ने एक भी गलती नहीं की। और अगर अब आप किताबें पढ़ेंगे, स्ट्रेस इज नॉर्मल, यू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस, नथिंग रॉन्ग, बट वी हैव टू थिंक, फील कि स्ट्रेस नॉर्मल कैसे हो सकता है। जो इमोशन मेरी बॉडी को नॉर्मल नहीं रख सकती, उस इमोशन को हमने नॉर्मल कैसे बोला। जब हम गुस्सा क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी काम एंड स्टेबल ईजी नहीं फील करती है। जब हम फियर क्रिएट करते हैं ये नॉर्मल नहीं फील करती है। और फिर भी सबने बोला फियर इज नॉर्मल। अगर हम आज इस हॉल से बाहर जाएंगे और हम कहेंगे मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, वो आपको ऐसे देखेंगे, कहाँ से आए आप। या फिर वो आपको बोलेंगे आर यू नॉट नॉर्मल, आपको स्ट्रेस नहीं होता है। कितनी बड़ी गलती हो चुकी है समाज से। इजंट इट अ वेरी बिग मिस्टेक कि कॉलम ऑफ नॉर्मल ही रॉन्ग हो गया। हम जब अपनी ब्लड रिपोर्ट आप हमें देते हैं और हम लाते हैं ना, हमें वो फिगर समझ नहीं आता, लेकिन हम वो नॉर्मल वाला कॉलम चेक करते रहते हैं, भाई हम इसके अंदर है ना, बस फिर ठीक है। अगर हम इसके अंदर नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब तक मेरा नंबर इस कॉलम के अंदर आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन विद मी। हाउ इंपॉर्टेंट दैट कॉलम इज। अगर किसी लैब ने वो कॉलम की ही गलती कर दी, मेरा डायग्नोज ही सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। मुझे बहुत बड़ी बीमारी होगी, मुझे लगेगा मैं ठीक हूं क्योंकि उसका नॉर्मल का कॉलम ही गलत था। तो आपको नहीं लगता हमें नॉर्मल की डेफिनेशन दुनिया को बतानी है? बतानी है या नहीं बतानी है? आपको लगेगा ये आपके रोल के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता? क्योंकि जब तक आप नहीं कहेंगे, लोग तो हमें पता है क्या कहते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं गुस्सा अपने अंदर दबाना नहीं चाहिए, करके निकाल दो। वो राइट बात ही कहते हैं, बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए। दबाने से क्या हो जाता है, वो और डैमेज क्रिएट करता है। लेकिन आधी राइट बात करते हैं कि निकाल दो। नहीं, ये सिखाना है क्रिएट ही मत करो जो अंदर दबाना पड़े। लेकिन वो आपको बिल्कुल भगवान की तरह मानते रहते हैं। आप बोलते हो वैसे भी उनको चांस मिल जाता है। डॉक्टर बोलते हैं गुस्सा तो करना ही चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलता है हर रोज शाम को 1 लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेशेंट ऐसा ही डॉक्टर ढूंढता है, उसको थोड़ी कहीं और जाना है। भले 100 डॉक्टर दूसरी चीज बोल रहे हो, एक डॉक्टर अगर उसको मिल गया ना जिसने ये कहा, वो कहेगा मेरे डॉक्टर ने कहा है 1 in the evening इज नॉट हार्मफुल, इनफैक्ट मेरे डॉक्टर ने कहा इट्स गुड फॉर द हार्ट। ये कर्मा होता है ऑफ अ हीलर। आपके बहुत सारे डीप कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं समाज के साथ। इट्स अ वेरी डीप कार्मिक अकाउंट। अगर मैंने एक गलत बिलीफ सिस्टम समाज में डाल दिया,
जो बिलीफ सिस्टम लोगों की सोच को बदलेगा और सोच से उनका भाग्य बदल जाएगा, और वो मैंने समाज में डाला है या मुझे पता है वो सही नहीं है और मैं समाज में राइट बिलीफ सिस्टम नहीं डाल रही हूं, तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट बनता है। ये अलग बात है कि अगर लोगों को लगता है अच्छा मैंने अगर ऐसे बोला तो मेरे पास पेशेंट कम आएंगे, तो हम कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, आप लो कुछ नहीं, आते तो रहेंगे ना कम से कम। तो ये तो मेरा कर्मा बनेगा, फिर बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप रेडी हैं नॉर्मल की इमोशंस दुनिया को बताने के लिए? लेकिन किताबों में अलग लिखा हुआ है। हाँ, आप रेडी हैं बताने के लिए? क्योंकि विज्ञान और ज्ञान, एंड ज्ञान कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, खुद एक्सपीरियंस होता है। एक स्कूल के बच्चे को एग्जाम के दिन स्ट्रेस होता है तो वो इमीडिएटली बोलता है पेट में कुछ हो रहा है, बुखार हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। अगले दिन एग्जाम खत्म होता है, बुखार का है। पेरेंट बोलता है ये ना झूठ बोलता है एग्जाम वाले दिन, पर वो झूठ नहीं बोलता ना, उसकी तबीयत रियली खराब होती है ना, अगले दिन वो एकदम से ठीक हो जाती है। मतलब जो इमोशन इमीडिएट उसी दिन बॉडी के अंदर एक डिजीज क्रिएट कर सकती है, उस इमोशन को हमने कह दिया वो इट इज नॉर्मल। सो दैट इज आवर फर्स्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम वो तब कर सकेंगे जब हम खुद अपनी इन इमोशंस पर वर्क करना शुरू करेंगे, जहां हम राइट हैंड वाली इमोशंस को कर्म में लाना शुरू करेंगे। और वो तब करना बहुत इजी हो जाएगा जब हम श्योर होंगे दिस इज नॉट नॉर्मल, इट इज एक्चुअली एन इमोशनल डिसईज। यहां पर आज फिजिकल हेल्थ के सारी स्पेशलिटीज होंगे, मेंटल हेल्थ भी होगी, लेकिन इमोशनल हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि इमोशनल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है और इमोशनल हेल्थ से मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर कौन बनेगा? आप में से कौन कौन रेडी है इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर बनने के लिए? 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे हर पेशेंट के साथ, लेकिन आपका पेशेंट 100% जल्दी ठीक होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली बार फिर नहीं आएगा आपके पास। Are you okay with that? You're sure? Do you want to treat them so that they just go back after a few years? आप बोलते हो ध्यान रखना हम फिर मिलेंगे नहीं तो। That's not good karma. उनको ऐसा कुछ सिखाओ तो बोलो इसके बाद हमें कभी मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सही तरीके से जीना सीख लिया है। ये नहीं अभी बाईपास हुआ 5 साल बाद हम फिर मिलेंगे, अभी कैंसर हुआ 5 साल बाद हम फिर मिलेंगे, ये थोड़ी होता है इलाज। इट्स बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग ऑन द बॉडी। तो हमने बॉडी में से किसी बीमारी को निकाला, और आप इतनी मेहनत करते हैं उस बॉडी में से उस बीमारी को निकालने की, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि एनर्जी यहाँ से जा रही थी उस बॉडी को, और यहाँ की तो हम नहीं बात करेंगे, हम पूरी तरह से उसको हम बोलेंगे यू आर कैंसर फ्री। आपके शरीर में एक भी क्षण नहीं बचा उस कैंसर का, लेकिन अब उसको ये नहीं बताते आपके यहाँ जो है उसको आप क्लीन करना, वो हमारा रोल नहीं है। आपने अगर पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, आपके अंदर अगर गिल्ट है, आपके अंदर अगर रिजेंटमेंट है, आप बातों को जल्दी जल्दी छोड़ नहीं पाते हो, तो फिर वो आप ध्यान रखना वो फिर से आपके शरीर में आएगा। अगर हम नहीं बताते तो फिर वो आते हैं हमारे पास, आप कहते हैं आपने तो बोला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कैसे हो गया फिर से मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद। कितना ट्रॉमा होता है उनकी लाइफ के अंदर, ओनली बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सो द टाइम हैज कम that every doctor will need to start telling their every patient about right thinking, and every doctor, like you prescribe exercise, the time has come to start prescribing meditation. It's no more an option, it's a necessity. एक आवश्यकता उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक्सरसाइज है। अगर कोई बैठा ही रहे तो बीमार हो ही जाएगा, लेकिन जैसे एक्सरसाइज शरीर के लिए जरूरी है, मेडिटेशन मन की एक्सरसाइज है। हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं हाँ हम करेंगे पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप बोलेंगे वो कल से शुरू कर देंगे। सो दिस इज योर कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो चीज आपको पता है रेडिएट, टेल द वर्ल्ड, क्रिएट मिरेकल्स, ताकि वही मिरेकल्स पूरे विश्व में पहुंचेंगे। क्योंकि दुनिया कहती है भारत विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु मतलब जो दुनिया से अंधकार निकालेगा। किस चीज से? ज्ञान की रोशनी से।
ज्ञान की रोशनी से अंधकार निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले किसका स्ट्रेस खत्म करना पड़ेगा? आपको लगता है स्ट्रेस खत्म हो सकता है, गुस्सा खत्म हो सकता है, फियर खत्म हो सकता है, ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं? हो सकती हैं? स्ट्रेस इज गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. फिजिक्स, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर बढ़ रहा है, आने वाले 5 साल में प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा. आपको पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको उनमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो. आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, आई एम सीइंग टू मच चेंज. आर यू सीइंग चेंज इन पीपल आफ्टर कोविड दैट दे हैव कम बैक? क्या चेंज दिखाई दे रहा है? क्या चेंज दिखा? इट्स नॉट दैट इट्स सम वेरी बिग चेंज, बट वेरी विजिबल चेंजेस. क्या चेंज लग रहा है समाज के अंदर? फियर और बिहेवियरल चेंजेस. हाँ, तो इसलिए आने वाले समय में ये जो न्यूमरेटर प्रेशर है ना, ये घटने वाला नहीं है, ये सिर्फ बढ़ेगा. और अगर स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर कर दिया हमने, तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा. बट स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, इनर पावर टू फेस दैट प्रेशर. वो रेजिलियंस को बढ़ाना है. हम स्ट्रेस को नहीं घटा सकते, वो हम प्रेशर को नहीं घटा सकते. इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. वो तो दुनिया की चीज़ है, सिचुएशन है. रेजिलियंस, इनर पावर, वो कंप्लीटली हमारे हाथ में है. हमें उनको ये फॉर्मूला देना पड़ेगा और हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें जिससे आपका रेजिलियंस. हम इस समय अनसर्टेनिटी के समय से चल रहे हैं. अचानक कुछ हो रहा है, अचानक कुछ हो रहा है. In the last 2 months, I don't know how many, but at least 10, 15, I have heard of children leaving the body. And suddenly the figure is too big for me, कि 2 महीने में इतने सारे young, teenagers, 15, 20, and a good percentage of that who chose not to live. पहले भी आता था, कब भी 6 महीने में कोई एक से ऐसा मिलना होता था. Now suddenly it's very big. There's no more pain than having to face this situation in your life. तो ये एक बहुत अनसर्टेनिटी का युग चल रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी की समय है. तो इसलिए रेजिलियंस, इनर पावर पर वर्क करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब आपका जो प्रोफेशन है, सारा दिन जो आपके पास लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ एक डिजीज्ड बॉडी के साथ नहीं आ रहे हैं, वो एक परेशान मन के साथ भी आ रहे हैं. तो मेडिकल स्कूल में सिर्फ सिखाया गया कि उनकी डिजीज्ड बॉडी का ध्यान कैसे रखना है, एंड विच इज परफेक्ट ना. लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि एवरीवन हु इज कमिंग टू यू इज नॉट इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ. जस्ट सिंपली बिकॉज वो बीमार हैं इसलिए भी हैप्पी नहीं है. और उनके साथ जो उनके केयर गिवर आ रहे हैं, जो अक्रॉस योर टेबल बैठे हैं, वो भी इस समय बहुत हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है. तो एवरी ओपीडी, एवरी 10 मिनट्स 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं, उठ रहे हैं. यू आर एक्सपोज्ड टू अ वाइब्रेशन ऑफ पेन. जैसे कोविड के टाइम पे वो प्लास्टिक शीट्स लगी थी आपके साथ, बस वैसी लगाने की जरूरत है, बट वो शीट दिखेगी नहीं. तो हमने क्यों लगाई वो शीट? क्योंकि एवरीवन कमिंग अक्रॉस द टेबल कुड बी कैरिंग द वायरस. उसमें तो फिर भी कुड भी है, लेकिन इमोशन में ऑलमोस्ट एवरीबडी, नोबडी इज कमिंग स्ट्रेस फ्री, एंगर फ्री, फियर फ्री, वरी फ्री. नोबडी इज कमिंग, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो. एवरीबडी इज कैरिंग दैट इमोशनल इन्फेक्शन एंड वी आर टॉकिंग टू देम फॉर 10 मिनट्स. 10 minutes of exposure of a lower vibrational energy. Go next 10 minutes. And फिर जो एडमिट है वो अलग, फिर जो आईसीयू में वो अलग, फिर जो हमारे पास स्टाफ है वो अलग. इतना एक्सपोजर है हमारा, एंड दैट इज द ओनली रीजन जो हम कहते हैं मेडिकल प्रोफेशन में बहुत स्ट्रेस है. मेडिकल प्रोफेशन में एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेडिकल प्रोफेशन हर क्षण दुआएं कमाती है. इट्स लाइक सेइंग जो बहुत धन कमा रहा है वो कंगाल है. ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास ये पैसे नहीं है. भाई इतना पैसे कमाते हो, कैसे पैसे नहीं है? नहीं हो सकता. ऐसे ही इतनी दुआएं कमाते हो, स्ट्रेस कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है? इज देयर एनी अदर प्रोफेशन जो इतनी ब्लेसिंग्स कमाते हैं? है कोई प्रोफेशन आता है ध्यान में जो इतनी ब्लेसिंग्स कमाता है? नहीं। कांस्टेंट ब्लेसिंग, कांस्टेंट ब्लेसिंग, कांस्टेंट ब्लेसिंग। जब किसी को कांस्टेंट ब्लेसिंग सुबह से रात तक मिले, और सिर्फ उस पेशेंट से नहीं मिले जिसका आज इलाज किया, जिसका 10 साल पहले किया था वो भी अभी तक ब्लेसिंग दे रहा है। उसको लगा था वो ठीक नहीं हुआ, आपने उसको ठीक कर दिया, वो जीवन के अपने लास्ट क्षण तक कहेगा डॉक्टर साहब ने जीवन दी, डॉक्टर। और सिर्फ वो ब्लेसिंग नहीं देता, आप किसी दिन बैठ के अगर आप काउंट करें ना, तो कैलकुलेटर पे वो फिगर फिट नहीं होने वाला जितनी ब्लेसिंग्स आपने अर्न की हुई हैं, वो 0 बियॉन्ड द कैलकुलेटर चला जाएगा वो। इट इज so much high vibrational energy, so much gratitude, so much love. किसी दिन कोई पेशेंट थोड़ा गुस्से से बात करता है, हम कहते हैं आजकल के पेशेंट अच्छी तरह से बात नहीं करते। एक को नहीं देखना, 5 को नहीं देखना, 10 को भी नहीं देखना, उन लाखों को देखना जो आपके लिए इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। थोड़ा सा फोकस उधर चला जाएगा, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। स्ट्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, लेकिन अलॉन्ग विद ऑल दोज ब्लेसिंग्स, जो हमारी लाइफ में एक थोड़ा सा सिचुएशन है वो ये है, वी आर एक्सपोज्ड टू इमोशनल पेन। अब उसके लिए हमें वो प्लास्टिक शीट बीच में लगानी है, मतलब हमें कोई प्रोटेक्शन लगानी है। तो क्या प्रोटेक्शन होगी कि कोई आया मुझसे मिलने के लिए, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है, लेट्स से किसी की फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 कोई फिगर होता नहीं फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशंस के लिए, लेकिन 30 है, मतलब थोड़ा नीचे है, और मैं 40 हूँ, तो ये 30 का मुझ पर असर, मतलब वो भी स्ट्रेस्ड है, मैं भी थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से स्ट्रेस्ड हूँ, वो भी गुस्सा करते हैं, मेरी लाइफ में तो वैसे ही इतना कुछ होता है, गुस्सा करना ही पड़ता है। उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए फियर है, मुझे कभी कभी सर्जरी के टाइम हो जाता है कि भाई बहुत हाई क्राइसिस, तो वो 30 है, मैं 40 हूँ, क्या उनकी वाइब्रेशन का असर मुझ पर पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब अगर मुझे चाहिए कि उनकी वो वाइब्रेशन का असर मुझ पर न पड़े, उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? क्या करना है? क्या करना है? लोअर एनर्जी का मुझ पर असर नहीं पड़े, उसके लिए क्या करना है? कितना रेस? कितना रेस? मतलब 30 है तो 40 चलेगा? नहीं, तो कितना रेस? आप बताओ ना, फिगर आप बताएंगे कितना रेस, ताकि इसका असर मुझ पर नहीं पड़े ऑफ अ वाइब्रेशन। 200? अच्छा, मैं तो 100 तक जा रही थी। 200, हाँ, वेरी गुड। Which means I will have to be at a very high vibrational energy, क्योंकि एनर्जी कभी लो से हाई नहीं फ्लो हो सकती। तो दो चीजें हो जाएंगी, जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे, इनकी वाइब्रेशन का असर हम पर नहीं पड़ सकता, और दूसरी ब्यूटीफुल चीज कौन सी हो जाएगी? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, तो उनकी वाइब्रेशन का असर, मतलब आपकी वाइब्रेशन का असर उन पर पड़ेगा। वो आएंगे विथ पेन, विथ सुनी सुनाई बातों का डाउट, विथ फियर, आपके पास बैठेंगे। अभी जो आपने लिखा है वो दवा उन्होंने खाई नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी वाइब्रेशन इज लाइक वो गर्मी में एसी, आपकी वाइब्रेशन इज लाइक वो मंदिर का सुकून, कि वो आएंगे, बैठेंगे, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। मन में होता है कि नहीं ऐसा अनुभव आपको? होता है ना? और वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब इलाज तो होता रहेगा, बट आपसे मिलकर मुझे पता चल गया सब कुछ परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। है या नहीं है? द डाउट एंड द फियर गेट्स रिप्लेस्ड विथ फेथ, बट वो फेथ शब्दों से नहीं क्रिएट हो सकता। वो फेथ किससे क्रिएट होता है? आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को ओवर पावर करती है। दुनिया में कुछ लोग जो मेडिकली डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको दुनिया फेथ हीलर कहती है। लोग उनके पास दूर दूर जाते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं, दबाते हैं, करते हैं, दर्द गायब, ठीक हो गए। हाउ? देन इट इज कॉल्ड फेथ healing. How is it that faith can heal the body?
Faith can heal the body because a negative emotion has created that pain and a pure emotion can release that pain. वो बॉडी का डिफेक्ट था ही नहीं, वो माइंड का क्रिएशन था, तो माइंड का रिलीज करना उस क्रिएशन को, बॉडी के अंदर से वो उस इमोशन के इफेक्ट को रिलीज कर देगा. अब अगर हम, वो सिर्फ फेथ हीलिंग कर रहे हैं, अगर हम साइंस और फेथ दोनों को पकड़ेंगे तो कितने मिरेकल्स क्रिएट होंगे, कितने मिरेकल्स क्रिएट होंगे. एंड फेथ मतलब क्या? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, और कुछ भी नहीं है. हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. क्या हम सब बिना गुस्से के काम कर सकते हैं? अब ऊपर उठाना है ना 100 तक. वो तो बहन ने 200 का है. 200 मतलब स्वप्न में भी गुस्सा नहीं कर सकते. 100 मतलब बिहेवियर में गुस्सा नहीं कर सकते. गुस्सा इज अ वेरी टर्बुलेंट एनर्जी. इट पुल्स आवर ऑरा डाउन लाइक दिस. विद इन 1 मिनट योर ऑरा कोलैप्सेस. हमने ये साइंटिफिकली होते हुए देखा है, विद इक्विपमेंट, विद एनर्जी. जैसे ही आप 30 सेकेंड गुस्सा करो, आपका ऑरा जो इतना है वो ऐसे कोलैप्स होके गिरता है नीचे. बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर भी. ऑक्सीमीटर है ना घर में हमारे सबके आजकल. आपके पास तो खैर बहुत कुछ चीज़ें, बट हमारे पास ऑक्सीमीटर है. तो हम क्या देखते हैं पता है? एक दूसरे को डांट रहा है. आप अगली बार करके देखना, लेकिन आप किसी को डांटना और फिर फटाफट ऑक्सीमीटर दोनों को लगाना. क्या लगता है, डांटने वाले का रिजल्ट या डांट खाने वाले का रिजल्ट? आपको तो सब कुछ पता है, फिर आप कैसे गुस्सा कर सकते हैं? Why use an emotion? It's a using of an emotion. Why use an emotion which is depleting my energy? Why use an emotion which is affecting my body? Why use an emotion which is depleting the other person's vibration? And why use an emotion which is a depleter for our healing center? पेशेंट के ऊपर पेशेंट के मन का असर पड़ता है, मतलब उसकी बॉडी पर उसके मन का असर पड़ता है. और किस किस के मन का असर पड़ता है उसकी बॉडी पर? उसके केयर गिवर्स के मन का असर पड़ता है. अग्रीड. अब केयर, पेशेंट बहुत पॉजिटिव है लेकिन केयर गिवर ही नेगेटिव 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 एनर्जी, असर पड़ता है. क्या पेशेंट के बॉडी पर आपके मन का असर पड़ता है? यस यस. विच मीन्स हमें सिर्फ उन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए जो हैप्पी डॉक्टर्स है. देखा, आपकी स्माइल बढ़ गई. मैं हैप्पी डॉक्टर हूँ. एवरीबडी स्माइल हैज इंक्रीज. शुडंट वी बी गोइंग टू हैप्पी डॉक्टर्स? हाँ. तो इसका मतलब सिर्फ जो आप अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे कार्ड्स जो सबने दिए, अवार्ड्स, वो सेकेंडरी है. आपका चेहरा ऐसा हो, आपकी वाइब्रेशन ऐसा हो कि मेरा किसी और के पास जाने का मन ही नहीं करे, मैंने खिंच कर आपकी तरफ चल के आना है. बिकॉज वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है. वो वाइब्रेशन की कमी है दुनिया में. एवरीबडी वॉन्ट्स दैट. क्योंकि वो मिलते ही ना पेशेंट के मन को एक सुकून मिलता है, और जैसे ही उसके मन को सुकून मिलता है उसकी बॉडी हील बेटर करती है. लेकिन अगर मेरा डॉक्टर स्ट्रेस्ड हुआ तो मैं क्या करूं? फिर क्या करें? अगर उनके चेहरे पर ऐसे दिखाई दिया कि अभी अभी बहुत जल्दी जल्दी में उनको भागना है, उनके पास टाइम नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए, तो मुझे कौन सी एनर्जी मिलेगी? और अगर अभी वो जस्ट गुस्सा करके आए हैं, तो वो अगर स्माइल भी करेंगे मुझे देखकर, लेकिन मुझे गुस्से की एनर्जी तो मिल जाएगी ना. दैट इज नॉट व्हाट हीलिंग रिक्वायर्स. तो व्हाट नीड्स टू गो बैक टू मेडिकल स्कूल एंड बी इनकॉर्पोरेटेड इज नॉट दैट यू ट्रीट, यू हील. You heal. You don't only treat, you heal. And healing के लिए the mind needs to be. ट्रीटमेंट के लिए इट्स ओके, थोड़ा स्ट्रेस हो, हम दवा तो आधी रात को नींद में भी करेक्ट वाली लिखेंगे, उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती है. लेकिन हीलिंग परेशान मन नहीं कर सकता है. हीलिंग एक काम स्टेबल मन से. तो आप बताइए कि बिना गुस्से के काम हो सकता है आपके हॉस्पिटल में? हमने पिछले कुछ सालों में कई हॉस्पिटल्स में नो एंगर जोन बनाया. बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर लगाए, राइट फ्रॉम द एंट्रेंस, एंड देन इन द कैबिन ऑफ द हॉस्पिटल डॉक्टर, एंड देन कॉरिडोर्स में अच्छे से, यू आर एंटरिंग इन टू अ नो एंगर जोन. आप रेडी हैं अपने हॉस्पिटल को, अपने क्लिनिक को नो एंगर जोन बनाने के लिए?
कौन कौन रेडी है? कौन कौन नहीं रेडी है? जब एंगर हटता है एक हीलिंग सेंटर से, ह्यूमिलिएशन निकल जाती है, हर्ट निकल जाती है, फियर निकल जाता है। आप अपने पेशेंट को 5 मिनट के लिए मिलते हैं, राउंड पे जाएंगे, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। लेकिन आपकी जो सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंटर्न्स हैं, वो दिन में कई बार मिलते हैं। सिस्टर तो खैर पूरा दिन ही मिलती रहती है, पूरी रात भी मिलती रहती है। अगर आपने चलते फिरते उसको 30 सेकेंड्स के लिए डांट दिया, गलती की थी लेकिन आपने चलते चलते 30 सेकेंड्स में उसको डांट दिया, तो आपने एक इन्वेस्टमेंट की जिससे आपके पेशेंट को अगले 24 घंटे तक दर्द की एनर्जी मिलने वाली है। और अगर आपने बाय एनी चांस पेशेंट के सामने उस नर्स को डांट दिया, तो फिर तो डबल कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो इसलिए एक हीलिंग सेंटर के अंदर कोई परेशान नहीं होना चाहिए, कोई उदास नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। तो लोग बस अभी अभी आएंगे और अभी अभी ठीक होकर चले जाएंगे। आपको उनको जल्दी भेजना है ना? जल्दी भेजना, नहीं भेजना? जल्दी भेजना है? जल्दी भेजना है तो फिर सिर्फ हेल्थ नहीं, हैप्पीनेस क्रिएट करनी पड़ेगी उस हॉस्पिटल के अंदर। दैट हॉस्पिटल हैज टू वाइब्रेट विद हैप्पीनेस एंड विद एंथुजियाज्म एंड विद लव एंड विद एक्सेप्टेंस। नॉट सिर्फ पेशेंट के साथ, उनके साथ तो रिश्ता सबका अच्छा है, आपस में आपस में आपस में वो करना पड़ेगा ताकि उस सेंटर की एनर्जी कैसी हो। तो इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट हम सब अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन बनाएंगे। पक्का? कब से? नहीं, कब से बनाएंगे? ये मत सोचना हाँ करते हैं, करें तो कल ही गुस्सा करेंगे सुबह सुबह मंडे। इट विल हैव टू बी डन फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ, फर्स्ट थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना उस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है। एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग, वेरी बिग ब्लेसिंग। क्योंकि आजकल उनको भी आदत पड़ गई, आने वाले समय में उन्होंने और इरेटिक बिहेवियर्स करने हैं। क्योंकि जितना जितना इमोशनल हेल्थ डाउन होती जाएगी, ये इरिटेट होना, चिल्लाना, जोर से बोलना, डिमांडिंग नेचर की तरह बिहेव करना, ये बढ़ता जाएगा। जैसे हम आजकल सुन रहे हैं ना बार बार, फ्लाइट में क्या हो रहा है, चिल्ला रहे हैं। कहते हैं हमने पैसे दे के टिकट खरीदी तो हम चिल्ला सकते हैं सामने वाले के ऊपर, क्योंकि उनका अपने ऊपर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो उनको याद नहीं रहता कि आप डॉक्टर हो, हम हॉस्पिटल में हैं। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये आने वाले समय में घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। तो उनकी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, आपके पूरे स्टाफ की सेफ्टी के लिए इट्स अ नो एंगर जोन। जिस पेशेंट ने यहाँ अंदर आना है उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ सबके साथ बात करना है। हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपने भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना है। दिस इज द नॉर्म ऑफ दिस हॉस्पिटल। तब आइएगा अंदर, उसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन है। और अगर कोई जोर जोर से चिल्लाकर बात करता है, थोड़े दिन पहले मैं एक फ्लाइट पे थी, एक लेडी जोर जोर से चिल्ला रही थी एयर होस्टेस पे, मतलब थोड़ा जोर से। अब नॉर्मली क्या होता है, एयर होस्टेस थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाती है और उनको बिल्कुल खुश करने की और उनको आराम से करने की कोशिश करती हैं। ये होस्टेस ने उनकी तरफ देखा एंड कहती है, मैम व्हेन यू आर फीलिंग फाइन प्लीज रिंग द बेल, आई विल कम। वो मैम थोड़ा सा और जोर से गुस्सा करने लग गई, बिकॉज शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ना। दिस इज अ वेरी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कि हम चिल्लाएंगे तो आप भाग के हमारा ध्यान रखने आ जाएंगे। ये पता है आदत कब पड़ी थी? जब हम छोटे थे, हम चिल्लाते थे तो मम्मी पापा आ जाते थे। इट इज़ दैट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर विच इज स्टिल वर्किंग। तो जैसे ही उस एयर होस्टेस ने यह कहा, वो लेडी ने जोर से और बोलना शुरू किया। वो एयर होस्टेस ने कहा, मैम आई एम गोइंग, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। एंड शी वॉकड अवे विद नो डिसरिस्पेक्ट एट ऑल। उसने बिल्कुल कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उसने सामने वाले को, उस अपने संस्कार को उसके ऊपर हावी भी होने नहीं दिया। ऑटोमेटिकली वो लेडी ठीक हो गई और 5 मिनट में सब ठीक हो गया। नहीं तो उनको लगता है हम चिल्लाते हैं तो ये हमारे पास फटाफट आ जाते हैं। अगर हम ये किसी को दिखाते हैं तो लोग तो चिल्लाने वाला मेथड यूज करने के लिए रेडी ही बैठे हुए हैं।
सो वी शुड नॉट अलाउ पीपल टू इनकरेज दैट काइंड ऑफ संस्कार। उससे वो उनका भी नुकसान है और सारे जो आपके हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंट जनरली आप पर नहीं डांटेंगे, लेकिन बाकी सब लोग, राइट फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट टू द स्टाफ टू द एवरीबडी, वार्ड बॉय टू द नर्स, क्या हर एक आकर उनको डांट के चला जाए इस तरह से? तो वो सारा दिन अगर उनको एक ने भी डांटा, दो ने भी डांटा, उसका रिजल्ट बाकी पेशेंट्स पे पड़ेगा, क्योंकि उनकी इमोशन में हर्ट आया होगा, ह्यूमिलिएशन आया होगा। सो इट कैन नॉट बी अलाउड इन अ हीलिंग सेंटर। ये बिल्कुल हानिकारक है हमारे हीलिंग सेंटर के लिए। तो इसलिए नो एंगर जोन बनाने में उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा। अब अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे? कुछ तो सिंपल चीज़ें डालनी पड़ेंगी डेली बेसिस पर, जिससे हमारी रेजिलियंस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आप सबको सिखाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वेरी गुड स्लीप हाइजीन। आपको कभी कभी आधी रात को उठ के जाना पड़ता होगा या लेट रात को जाना पड़ता होगा, लेकिन सबको नहीं जाना पड़ता। मेजॉरिटी आ जाते हैं टाइम पर 7 बजे 8 बजे तक घर। लेकिन क्या आप डीप स्लीप एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है और वो है बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड। और जब लोग स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो उनकी बॉडी की हीलिंग जो नींद में होनी चाहिए वो होती नहीं है। और इसमें जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो है बच्चे, जो राइट टाइम पर नहीं सोते हैं, जो सोने से पहले स्क्रीन्स के साथ बैठे रहते हैं। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप एट ऑल। और अगर इस एज में वो डीप स्लीप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो उनकी बॉडी की हीलिंग कैसे होगी? सही सोने का समय कौन सा होता है और उठने का समय कौन सा होता है, ये भी आपको सबको बताना है। और ये भारत ने बताना है सारी दुनिया को कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो वाइब्रेशन होती है ना वातावरण की, वो सिर्फ मन के लिए नहीं, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस पर आप पूरी साइंटिफिक रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बॉडी में क्या क्या होता है एट ब्रह्म मुहूर्त। एंड अगर हम उस ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए हैं तो हमने हाई वाइब्रेशनल टाइम को तो खो दिया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना पड़ेगा। हम बहुत सारे डॉक्टर्स को जानते हैं, सारा दिन में बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर घर आते हैं, कहते घर आने के टाइम बाद नाउ इट इज़ माई डी स्ट्रेसिंग टाइम। वेरी गुड। तो आप डी स्ट्रेसिंग टाइम में क्या करते हैं? कहते हैं हम टीवी देखते हैं। वर्तमान समय का टीवी बिल्कुल डी स्ट्रेसर नहीं, स्ट्रेस क्रिएटर है। And anybody who has to work so much with pain and trauma and all this during the day, कम से कम रात को आके और पेन और ट्रॉमा तो नहीं अपने ऊपर भरो ना in the name of entertainment. Content is equal to emotional diet. ये भी प्लीज अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दीजिए। अब के समय में सिर्फ फिजिकल डाइट के बारे में बात करना आधी इंफॉर्मेशन है। Content is equal to emotional diet. What we watch, what we read, what we listen creates our thoughts. Thoughts create our sanskar. Sanskar creates karam. Karam creates destiny. So content is equal to destiny. अगर आपको साइंटिफिकली इसका ग्राफ बनाना है फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, आप सिर्फ 30 इयर्स पीछे जाइए और आप एक ग्राफ बनाइए। पहला टीवी, पहला फोन, पहला स्मार्टफोन, इंटरनेट, फिर फर्स्ट एपिसोड, फिर एपिसोड डेली, फिर एपिसोड एनी टाइम, फिर बिंज वॉचिंग, फिर OTT प्लेटफॉर्म्स। इसका एक ग्राफ बनाइए और साथ साथ आप ग्राफ बनाइए कैंसर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, दोनों साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल दोनों बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। आप और हम सब उस जेनरेशन के हैं मेजॉरिटी जब पहला टीवी आया था। पहला टीवी कौन कौन के घर में टीवी नहीं था? उस जेनरेशन स्टार्टिंग में टीवी नहीं था। सी ऑल ऑफ अस। सो जब वो वाला टाइम था जब टीवी नहीं था, फोन नहीं था, हमारा कंटेंट सिर्फ क्या था? एक न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स और हमारे बड़े टीचर्स और पेरेंट्स, उतना ही। और उस समय पर डिप्रेशन तो छोड़ो, स्ट्रेस भी वर्ड ही नहीं था, सिर्फ फिजिक्स में था। वी नेवर सेड आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड। एंड दिस इज नॉट हिस्ट्री, दिस इज जस्ट 25-30 years back. And 30 years में we are saying stress is तो normal, now तो we are saying we are depressed. और अगर हमने अभी भी इसको ठीक नहीं किया
तो कुछ सालों में हमने कहने, कुछ साल भी नहीं, ज़्यादा साल भी नहीं लगेंगे, हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल, आपको डिप्रेशन नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है, लाइक दैट। बिकॉज एनीथिंग नॉट टेकन केयर ऑफ इट्स गोइंग टू गेट। कैंसर कितना था 30 साल पहले, डायबिटीज कितना था 30 साल पहले, डिवोर्स कितना था 30 साल पहले। इट्स ऑल अ क्रिएशन ऑफ 30 years। एंड सो लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा फैक्टर अब है कंटेंट कंजम्पशन, क्योंकि अच्छा खाना खाना लोगों को आ गया अब, लेकिन अच्छा सुनना पढ़ना देखना उन्होंने छोड़ दिया है। एंड उसको भी अगर आपको समाज को ठीक करना है तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम व्हेन द सोल इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर। एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए लिख दो आपने 9 महीने अपने फ़ोन और टीवी से एक भी शब्द नहीं कंज्यूम करना जिसके अंदर कुछ नेगेटिविटी है। 9 महीने के बाद आपको बच्चों का जीवन भर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, दे विल बी टेकन केयर ऑफ प्रोवाइडेड यू लेड डाउन द राइट फाउंडेशन वाइल इन द वूम्ब ऑफ द मदर। वूम्ब पर ध्यान रख लें, किंडरगार्टन पे ध्यान रख लें, फाउंडेशन बच्चे की बन जाए, पूरी लाइफ सेफ। लेकिन वूम्ब में पेरेंट इज विद फोन, सब्सटेंस अब्यूज एवरीथिंग, और फिर कहते हैं हमारे बच्चे फोन नहीं छोड़ते। कैसे छोड़ेंगे? गर्भ संस्कार है वो गर्भ संस्कार है। जब वो गर्भ में थे आपने फोन नहीं छोड़ा। कहते हमारे बच्चे बहुत हाइपर हैं। क्यों नहीं होंगे? जब वो गर्भ में थे आप हाइपर थे, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप भागते रहते हैं, आराम से चलते भी नहीं है, हम वेरी बिजी, हम वेरी बिजी। वो हाइपर है। 30 years पहले बच्चे को कहो बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठो उठो, चलो चलो, अभी तो भागते रहते, उछल कूद, द पेरेंट इज लिटरली रनिंग आफ्टर देम एवरीवेयर। क्यों इतना? क्योंकि वी वर हाइपर ड्यूरिंग दोज 9 months। तो ये भी हमें उनको बताना है। तो कंटेंट विल नीड टू गो ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन नाउ, चाहे आप कोई भी स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, क्योंकि कंटेंट इज इक्वल टू थॉट्स। लेकिन उसका सबसे पहला ध्यान किसने रखना है? हमने। एंटरटेनमेंट के नाम पे हम नेगेटिव कंटेंट, मतलब कंटेंट जिसमें वरी, फियर, एंजाइटी, जेलिसी। आपको जेलिसी तो नहीं होती? होती है जेलिसी? नहीं बताएंगे नहीं, क्योंकि जिनसे जेलिस है वो भी शायद इसी हॉल में बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं बताना हमने। कंपैरिजन, कंपटीशन, सोशल मीडिया ने एक अलग लेवल पर ले गए। पहले तो हम इतने ही लोगों से कंपेयर एंड कम्पीट करते थे, अब तो हम दुनिया के साथ अपने आप को कंपेयर एंड कम्पीट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम दुनिया के सामने ऐसे खड़े हो गए हैं, प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ वैलिडेट दैट आई एम अ गुड पर्सन। ये सब इमोशंस आएंगी तो शरीर ठीक कैसे होगा? कैसे शरीर ठीक होगा? ऐसे आई विल बिकम व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, ताकि मुझे कल सुबह ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। और ये कब से? स्कूल में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखते हैं, उसी नाम का सोशल मीडिया हैंडल बना देते हैं, कहते बाद में उसके नाम का मिलेगा नहीं। सो ये सब कुछ कौन उनको बताएगा? आप, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग। पर पहले हमें करना होगा। रात को घर आके न्यूज़ मत सुनिएगा, न्यूज़ मत देखिएगा, इनफैक्ट आप तो न्यूज़ देखिएगा ही मत। Don't consume any more pain from the world, because you have to clean the pain that you're consuming during the day. लिखत में 5 लाइनों में पता चल जाता है दुनिया में क्या हो रहा है। उसका विजुअल देखना, उसका ऑडियो सुनना, उसकी डिबेट सुनना हमारे लिए हानिकारक है। कितना दर्द हम लेंगे अपने इस मन के ऊपर। तो हम रात को या सुबह कभी न्यूज़ नहीं कंज्यूम करेंगे। और फिर सोने से 15 मिनट पहले हम बहुत हेल्दी डाइट कंज्यूम करेंगे। दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि सोने से पहले आप प्योर पॉजिटिव कंटेंट एटलीस्ट 10 मिनट्स कंज्यूम कीजिए। एक बुक, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कुछ भी। फ्लड योर माइंड फॉर 10 मिनट्स with compassion, faith, love, acceptance, forgiveness, letting go। just उन शब्दों से, उस कंटेंट से आप उसको फ्लड कीजिए। आप सो जाइए, अगले 6 घंटे वही शब्दों का वाइब्रेशन आपके माइंड और बॉडी पर वर्क करता है। सिर्फ माइंड को स्ट्रेंथन नहीं करता, बॉडी को हील करता है। बॉडी को हील करता है अगर आप रात को सोने से पहले, क्योंकि वो कंटेंट सबकॉन्शियस में चला गया ना। तो रात को सोने से पहले का कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा है। फिर सोने से पहले 5-7 मिनट मेडिटेशन कीजिए। पहले मेडिटेशन सीखिए, उसको कीजिए। सोने से पहले जितनी अप्रिसिएशन आज सारा दिन में मिली थी, बहुत अप्रिसिएशन मिलती है,
लेकिन जितनी अप्रिसिएशन आज सारा दिन में मिली थी, सोने से पहले उसको ऊपर भेज दीजिए, समर्पण। क्योंकि अगर अप्रिसिएशन को समर्पण नहीं किया तो ईगो धीरे धीरे क्या होने लगेगा। एक फॉर्मूला हमेशा रखना, जितनी मेरी सक्सेस बढ़ती जाए उससे कई गुना ज्यादा मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ती जानी चाहिए। देन आई एम सेफ, देन आई एम सेफ। जितनी सक्सेस उससे कई गुना ज्यादा मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ती जानी चाहिए, देन आई एम इमोशनली हेल्दी, मेरा EQ फिर हाई है। तो सरेंडर योर अप्रिसिएशन। परमात्मा आपका शुक्रिया, आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, इनके कर्म अच्छे थे, ये आज ठीक हो गए। स्पिरिचुअली हमेशा याद रखना, जो आपके हॉस्पिटल में एंटर करता है वो अपना कर्म और अपनी डेस्टिनी अपने साथ लेकर आता है, सिर्फ बीमारी साथ लेकर नहीं आता है। आप उसके कार्मिक अकाउंट का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसके कर्म उसका भाग्य डिसाइड करते हैं। और इसीलिए अगर कभी कभी आपकी सारी मेहनत के बावजूद कुछ चीज नहीं ठीक होती है तो अपने अंदर गिल्ट नहीं लेकर आना है उसके लिए। वो गिल्ट हमारे लिए हानिकारक है और वो हमारे अगले पेशेंट के लिए हानिकारक है। इट इज ऑल्सो द कर्मा एंड द डेस्टिनी ऑफ दैट सोल इफ कॉन्शियसली आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। तो हर एक का कर्मा और डेस्टिनी उसके साथ साथ चलता है। तो इसीलिए कोई आपके द्वारा ठीक होता है तो उसमें सिर्फ आपका रोल नहीं, उसके श्रेष्ठ कर्मों का भी रोल है। तो उसके कर्मों को शुक्रिया, परमात्मा को शुक्रिया, सरेंडर द अप्रिसिएशन। अगर स्तुति में स्टेबल रहेंगे, निंदा टच नहीं कर सकती। निंदा स्तुति एक समान, पेंडुलम इन द सेंटर। अगर स्तुति में एक्साइटेड हो गए तो निंदा में बुरा लगेगा। पेंडुलम उतना ही इक्वल इस तरफ और इस तरफ ऑसिलेट करता है। तो स्तुति में बिल्कुल अनटच्ड, निंदा में रहेंगे अनअफेक्टेड। एब्सोल्युटली, दैट्स लॉ ऑफ साइंस कि हमें स्टेबल रहना है। तो सोने से पहले सरेंडर। सोने से पहले अगर किसी को कुछ ऊंची आवाज में आज बोला था, उससे क्षमा मांगे। ये सब कुछ सोने से पहले सफाई करनी है, क्लेंजिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ द माइंड। उससे क्षमा मांगे। और अगर किसी ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया था, उसको क्षमा करें सोने से पहले, ताकि वो सब बैगेज हमारे सबकॉन्शियस में ना चला जाए, कॉन्शियस माइंड से सोने से पहले साफ हो जाए। इन्फेक्शन अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो वो इम्बेड हो जाता है अंदर। और फिर सोने से पहले हम कुछ संकल्प करेंगे, वो आप अभी लिख भी सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एवरी सिंगल डे। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो अगर हम कुछ संकल्प सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं, तो वो हमारे जीवन में सिद्ध हो जाते हैं। और ये हीलिंग में बहुत ज्यादा काम करता है। जब आप उसको खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आप अपने पेशेंट्स को संकल्प लिख के दे देंगे, ये संकल्प करो, सिद्धि हो जाएगी। संकल्प से सिद्धि मतलब जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो संकल्प करो एंड इट विल मैनिफेस्ट। रिपीटेड संकल्प। पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग। दूसरा, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। आजकल हम बहुत बार संकल्प करते हैं, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड। नेवर से आई एम स्ट्रेस्ड। द मोर यू से इट, द मोर यू विल बिकम इट, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। The more you say, I'm very busy, I don't have time, you will always be busy. And busy does not mean more work. Busy just means hassled. So don't use negative, low vibrational words, क्योंकि उनकी सिद्धि होती जाती है. So I am a powerful being. I am calm and stable always. I am always happy. Always happy. I am light. I am easy. I have more time than I need. मेरे पास भरपूर समय है, भरपूर धन, भरपूर समय। I am an angel of God. मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। My mind and body is perfect and healthy always. मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कुछ भी है, छोटी बड़ी बीमारी, उसके लिए संकल्प अलग।
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर हम संकल्प करेंगे माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80, गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द माइंड फॉर द नेक्स्ट 6 hours. And we've done this with lot of people whose bodies have issues and they said अरे कुछ नहीं है 3 महीने करेंगे ठीक हो जाएगा. Using the power of the mind in healing, क्योंकि माइंड ने डिजीज क्रिएट की थी, माइंड हील भी कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को. तो अगर कुछ है तो आपको तो सबसे अच्छा पता है उसके लिए क्या संकल्प बनाना है. जो आप चाहते हैं कि हो, क्रिएट अ थॉट, it is, my sugar level is normal, rather than going on saying I am diabetic, never say I am diabetic, I am not. अगर बोलना भी है तो बोलो my body is diabetic, not I am diabetic. The soul is not diabetic, the body is. But you should not say I am. Affirmation है, संकल्प से सिद्धि होती है. My sugar levels are normal. तो for the body. Otherwise everybody says my body is perfect and healthy always. फिर रिश्तों के लिए I accept everyone, everyone accepts me, and my every relationship stands on respect and trust. फिर every patient interaction is a divine experience. Every patient interaction is a divine experience. For those of us who operate, every surgery is a divine experience. Then an affirmation for the hospital. Everything is smooth. मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती हमारे हॉस्पिटल में, कोई विघन नहीं आता. Everything is smooth. Everyone is healed. And everyone is back home, healthy forever. Everything is smooth, everyone is healed, and everyone's back home, healthy forever. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. ये सुरक्षा कवच रोज पहनना है. जैसे वो पीपी किट वायरस नहीं आने देता, ये सुरक्षा कवच, ये एक हाई वाइब्रेशनल थॉट है जो लोगों की लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स को अंदर आने नहीं देता. God's power and blessings is a divine circle of protection around me. इस सर्कल को कई बार ड्रॉ करना चाहिए दिन में. एक थॉट है, 1 सेकेंड लगता है सिर्फ, लोअर वाइब्रेशनल थॉट अंदर नहीं आती. एंड देन ड्रॉ दिस सर्कल अराउंड योर हॉस्पिटल. God's power and blessings is a divine circle of protection around my healing center. अब ये 8-10 थॉट्स हैं. एक डायरी और पेन पिलो के पास रखिए. रात को सोने से पहले एक बार इसको सारी थॉट्स को लिख दीजिए. 30-40 सेकेंड्स लगेंगे सिर्फ. लिखने से ज़्यादा जल्दी रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे. सो 10 मिनट्स पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम किया, मेडिटेट किया, अप्रिसिएशन को सरेंडर किया, फॉरगिव किया, अपोलोजाइज किया, क्लेंस किया. और फिर अगर कोई पेशेंट याद आ गया रात को सोने से पहले कि ओहो उसका आज वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचिए, जल्दी से उसको एक ब्लेसिंग भेज दीजिए. टुमारो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. रात को प्रॉब्लम के साथ नहीं सोना है, नहीं सोना है, क्योंकि सारी रात 6 घंटा वो प्रॉब्लम की एनर्जी सर्क्यूलेट होगी माइंड और बॉडी के अंदर. उसको ब्लेसिंग दीजिए और फिर ये अफर्मेशंस लिखकर आप सो जाइए. आपने हाई एनर्जी वर्ड्स कंज्यूम किए हैं सोने से पहले, इसलिए माइंड एंड बॉडी को सिर्फ हाई एनर्जी वर्ड्स मिलेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6-7 आवर्स. सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्रिया एंड जस्ट रिपीट दीज थॉट्स 2-3 टाइम्स. भले मन में ही बोलो, लेकिन बोलिए. तो आपकी शुरुआत सबकॉन्शियस माइंड में फिर से हाई एनर्जी थॉट्स से जा रही है. और वो हाई एनर्जी थॉट्स जो आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं, संकल्प से सिद्धि चाहते हैं. फिर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक आपको 15 मिनट निकाल के पॉजिटिव कंटेंट फिर कंज्यूम करना है. मतलब स्पिरिचुअल कंटेंट फिर कंज्यूम करना है. चाहे आप तैयार होते हुए कर लो, चाहे आप ट्रैवल करते हुए हॉस्पिटल तक कर लो. बाकी आज आप जितने भी डॉक्टर्स से मिलेंगे वो बहुत सेवा करते हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने लिए रोज़ 1 घंटा निकाल के सेंटर पर आते हैं. और फिर भी उनके पास आज ज़्यादा टाइम है, क्योंकि वो अपने माइंड को और पावरफुल बनाते हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं. लेकिन शुरू में हम 15 मिनट तो ज़रूर निकालेंगे ही निकालेंगे. और फिर सारा दिन में जो कुछ हमने अपने अंदर भरा है उसको अपने कर्म में लेकर आएंगे. मतलब कर्म योगी बनकर सेवा करेंगे.
हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से, हम फरिश्ता हैं, हम सिर्फ देते हैं, गुस्सा हम यूज़ करेंगे नहीं। और लास्ट चीज़, जो हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने से पहले भी हम इन संकल्पों को 10 सेकंड के अंदर रिपीट करेंगे, क्योंकि खाना वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करता है। एक और बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये बहुत पावरफुल सिद्धांत है जो भारत ने पूरी दुनिया को बताना है, एंड दैट इज जैसा अन्न वैसा मन होता है। उन्होंने कहा यू आर वॉट यू ईट, तो दुनिया ने समझा द बॉडी इज वॉट आई ईट। एंड डाइटिशियन भी हमारी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन सिर्फ उस पर ही फोकस करते हैं। दैट इज हाफ इंफॉर्मेशन, important information but half information. Second half is what is the vibration of the food that I eat, not just the nutrient of the food that I eat. अगर हम हॉस्पिटल में रूम्स में टीवी लगा देते हैं उनके लिए सामने, उसमें वो न्यूज़ चैनल ही देख रहे हैं पूरा दिन, उसमें वो सीरियल देख रहे हैं जिसमें रोना धोना, इज दैट द कंटेंट टू कंज्यूम फॉर हीलिंग? नहीं। खाना खाते हुए भी वही वाला कंटेंट देख रहे हैं। हॉस्पिटल हैज़ टू टीच राइट लाइफस्टाइल। तो वाइब्रेशन ऑफ फूड। एक और चीज़ जो भारत ने दुनिया को बतानी है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल डाइट इज नॉट हेल्दी। डू यू थिंक इट्स हेल्थ? डू यू थिंक इट्स हेल्दी? You can say it's proteins. You can say it's lot of vitamins. But you cannot call death health. वो डेथ है, हेल्थ नहीं है, डेथ है। एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम जो दुनिया भर में फैल गया कई सालों से। डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए, इट्स हेल्दी। और अगर हम नहीं खाते तो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं यू आर नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग। ये बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है। मृत्यु को स्वास्थ्य बोलकर दुनिया को हम नहीं दे सकते हैं, हमें खुद उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। What is the vibration in a slaughterhouse? Anger, anxiety, fear, pain, violence, death. किसी की डेड बॉडी को तो 1-2 दिन भी घर में नहीं रख सकते, वो भी हमारे परिवार के। और हम हेल्थ के नाम पे, so we will have to tell the world. In the West, जहाँ से हम बहुत सारे अपने लेते हैं एविडेंस बेस्ड, the West has started talking about it. The West has started talking about it. Cancer, plant-based diet. Heart problems, plant-based diet. Why are we not talking about it? हम सिर्फ बोलते हैं अच्छी डाइट लीजिए। ओपनली बोलना चाहिए कि प्लांट बेस्ड डाइट, आगे उनकी मर्जी, उन्होंने करना है कि नहीं करना, हम तो अपना कर्म सही करें। इतने सालों का हमने गलत भ्रांति डाली हुई है समाज के अंदर। मुझे याद है 20 साल 30 साल पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते, अच्छा यू आर वेजिटेरियन, ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं बेचारे ये जीते कैसे हैं। हाँ, अभी तो कम से कम वो उतना नहीं, बहुत कम हो गया, लेकिन अभी फिर भी वो बचा है कि ओपनली बोलना पड़ेगा कि दिस इज हेल्दी। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो उस भ्रांति में जीते हैं कि दिस इज हेल्दी। अगर आप उनको बता दें कि नहीं प्लांट बेस्ड डाइट इज हेल्दी, हाफ से ज़्यादा कंट्री आज वेजिटेरियन हो जाएगी, बिकॉज दे आर रेडी, बट उनको डर लगता है। तो प्रोटीन्स मिल सकती हैं प्लांट बेस्ड डाइट से, लेकिन एनिमल बेस्ड डाइट से जो वाइब्रेशन मिल रही है उसको कैसे हटाएंगे? सो दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। एंड दूसरा, नो स्क्रीन टाइम ईटिंग। और खाना खाने से जस्ट पहले 10 सेकेंड रुकें। स्पेशली आप हॉस्पिटल के अंदर खाना खाते हैं, हॉस्पिटल में पानी पीते हैं, वाइब्रेशंस खाने और पानी के अंदर होती हैं और वो हमारे अंदर जाती हैं। तो जैसे हम हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते, हम वाइब्रेशंस को क्लेंस करे बिना खाना नहीं खाते हैं। हम 10 सेकेंड्स में आई एम पावरफुल, आई एम काम, आई एम स्टेबल, आई एम हेल्दी, परफेक्ट, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग अराउंड मी, फिर खाना खाते हैं, ताकि हमने खाने में से स्ट्रेस और फियर और पेन का वाइब्रेशन हटा दिया। सो वेरी वेरी सिंपल 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 चीज़ें। भारत की संस्कृति, भारत की स्पिरिचुअलिटी, राजयोगा मेडिटेशन, हर सेंटर पर बहनें सदा फ्री है आपको सिखाने के लिए। आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, आना है और अपने हर पेशेंट को भेजना है। अपने हर पेशेंट को भेजिए। आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं विदिन 3 किलोमीटर सेंटर्स हैं, आप सेंटर की बहनों को बताइए, एड्रेस आप सबको बोलिए आपको मेडिटेशन सीखना, वहाँ जाइए।
बहनें सदा, देयर इज नॉट अ कॉस्ट अटैच, तो आप हर एक को भेज सकते हैं, हर एक को भेज सकते हैं। ये हमारी सेवा है उनके प्रति कि आप उनको बोलिए आपके शरीर का ध्यान हम रखेंगे, मन को स्ट्रांग बनाने के लिए आप मेडिटेशन सीखने के लिए जाइए, और जब आप दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा और फॉर एवर हो जाएगा, हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। और आप चिंता मत करना, आप चिंता नहीं करना कि अगर लोग फिर से नहीं मिलेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। कलयुग का अंतिम समय है, आपके हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ भरते जाएंगे, ये सिर्फ भरते जाएंगे कलयुग के एंड तक। फिर सृष्टि परिवर्तन होगी, सतयुग आएगा और सतयुग में कोई डॉक्टर नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।